द प्लॉट ट्विस्ट हैपन। ऐसा था वो सबसे बेकार गया है, मतलब आई एम अनसर्टेन अबाउट द रिजल्ट, वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या, सो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं फॉर्मेलिटी करके आ चुकी हूँ एंड मैंने नहीं सोचा था कि मेरे एग्जाम ऐसे जाएंगे, बिल्कुल एकदम बॉटम लाइन पे आके अगर पास हो गई। आई वॉज जस्ट मेकिंग माई प्लान अगेन एंड अगेन कि अब 50 डेज बचे तो उसका प्लान बनाया, वो फॉलो नहीं हुआ तो 40 डेज का बनाया, देन 30 डेज का बनाया, देन मैं एग्जाम देने गई एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस आई वॉज on and on, I can say that I have attempted. Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing great and तुम सबके एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे गए होंगे. So in this video I am going to review how my exam went, and more than exam review, this video is also about a life update, because then you can connect why my exam went like this, that I will explain in the video. And those who are watching me for the first time, I am Disha and I gave my CA Inter both group exams last month. So let's start from where I left. So last जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी वो था एक स्टडी व्लॉग एंड ड्यूरिंग नवंबर आई पोस्टेड इट. फिर उसके बाद 3 months का गैप था. सो ड्यूरिंग नवंबर आई वॉज लाइक, मैंने प्रॉपर अपना रिविजन प्लान बनाया था 3 months का एंड पूरा डेट वाइज था फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट आई कुड नॉट एग्जीक्यूट इट. जो मैंने बनाया था वो मैं प्रॉपर फॉलो ही नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न. Here and there things were happening, a lot of things happened that जो मैं focus ही नहीं कर पा रही थी. Whenever I used to sit down to study, anything would happen and I just can't focus. So that happened and for the whole month I was just restarting again and again. After every single day I was like, आज मैं अच्छे से साइड आगे complete करूँगी. हो ही नहीं रहा था ऐसा. I was just making my plan again and again कि अब 50 डेज बचे हैं तो उसका प्लान बनाया, वो फॉलो नहीं हुआ तो 40 डेज का बनाया, देन 30 डेज का बनाया. आई वॉज स्टिल इन होप दैट ओके आई विल मेक इट, नो मैटर वट थिंग्स हैपन, नो मैटर हाउ मच डिस्टर्बेंस आई एम फेसिंग, आई विल डू इट, आई कैन क्लियर इट. बिकॉज पहले भी जो सी एस्पिरेंट्स होते थे उनके एग्ज़ाम दिसंबर में होते थे, तो उनको सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता था रिविजन के एंड स्टिल वो रैंक भी लाते थे, राइट. सो हमें तो 3 months मिलता है. But see, if you live in a joint family or if you are from an area where there is so much disturbance, you might relate. And if you can't, तुम्हें यही लग रहा होगा ये बकवास कर रही है, but it's not like that. I was suffering here so much that I couldn't even explain in this video. And that's how my November went. I keep on updating my revision plan and I was not able to keep my commitment with myself. So November went on like this, then December came, and during December emotionally I suffered a lot. Emotionally I was not doing well, not because of anything, I was just because of the environment I have, just because where I live, just because my own people are not able to understand. I made that understand that I am preparing for it and it requires this and this things, but I was told to compromise. That I was doing also, but it was also making me suffer internally. And abhi I am speaking very happily about it, but when this all happened, it still happens, like every other day it may happen, but I deal with it like this only. So during December only 30 or 35 days were left for the exam, and I thought that during this phase it is a do or die situation, so I need to work hard, right. And I made a plan also कि अब वो डिटेल रिविजन वाला टाइम तो रह नहीं गया है, अब तो मैराथॉन्स वगैरह देख के मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही करना पड़ेगा. तो उसके लिए प्लान बनाया और एग्जीक्यूशन चल रहा था. बट देन जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस माई नेबर्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग देयर होम, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इट दे स्टार्टेड क्या बोलते हैं उसे, वो अपना पुराना घर तोड़ने लगे, राइट. सो उसका इतना शोर होता था. आई यूज टू वेक अप कि अब फोकस होगा, अब फोकस से पढ़ूंगी ना. सबसे पहले सुबह उठ के मैं ऑडिट ही उठाती थी, एंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट
सुबह का टाइम थोड़ा शांति वाला रहता है एंड अच्छे से फोकस हो पाता है। सुबह सुबह वो स्टार्ट हो जाते थे अपनी मशीन लेके, और फिर भी मैं ऑडिट को लेके बैठी रहती थी और पढ़ती थी। एंड दिसंबर में ठंड का टाइम था, तो छत पे प्रेफरेबली मैं जाती थी कि थोड़ी धूप भी मिल जाएगी एंड पढ़ लेंगे 2-3 घंटा ऑडिट। बट नहीं, मेरे घर के सामने तो यही हो रहा था। नाउ यू मैं थिंक दैट इससे अच्छा लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो आई विल टेल यू कि लाइब्रेरी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है एंड फॉर दैट आई हैव टू ट्रैवल, और ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम जाएगा। प्लस माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, so she was like study at home only. So this happened during December, or whole December, and till now the construction is not completed. Every other day there is new kind of disturbance that happens. Then during mid of December, I was like, at least I should pass. छोड़ो अब रैंक में, at least अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो बने। एंड आई वॉज इतना फियर ड्रिवन कि फियर था मेरे अंदर कि अगर अटेम्प्ट लग गया तो क्या। Actually, the situation is very complex that I cannot even explain. And being an aspirant, you can only relate to me if you have faced it. And I think मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस होता है that I could not even tolerate, and I used to get so much, pissed off. And when only 15 days were left for my exam, my mother got ill. एंड इट हैपन ऑल ऑफ अ सडन, लाइक उसी के 1-2 दिन पहले मैंने ऐसा मन बनाया था अच्छे से कि अब 15 दिन है, अब तो कुछ भी करके निकालना तो है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलो जो बीत गया सो बीत गया, अब तो अच्छे से पढ़ूंगी। मुझे इस टाइम पर शौक लगा कि अब क्या। देन शी वॉज बेड रिडन फॉर 5-6 days एंड आई यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एंड आई वॉज नॉट यूज टू इट। सो आई यूज टू गेट सो टायर्ड, तो मैं लेटे लेटे ही टीवी पे चला देती थी रिविजन वीडियोस एंड अपना रिविजन ऐसे देख के करती थी। कोई इफेक्टिव रिविजन नहीं था वो। शी रिकवर्ड। सो देन ओनली 5 days वर लेफ्ट फॉर अकाउंटिंग एग्ज़ाम, एडवांस अकाउंटिंग, राइट। तो अभी आई वॉज कि जितना भी हो गया मैराथन से देख के, तो लाइक पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट आई शुड सिक्योर। सो देन what happened, the plot twist, I got ill and at that time बस मेरा हो चुका था। ड्यूरिंग के जो ड्यूरिंग योर जर्नी, अब तुम जैसे भी क्लासेस करते हो, होमवर्क करते हो, ब्लैक क्लॉक्स हो जाते हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन जो ये 3 months होता है लास्ट, ये बहुत क्रूशियल होता है। इनमें इसमें अगर कर लिया, अगर तुमने पूरे टाइम पे अगर ऐसे तुम्हारी सिचुएशन ऐसी रही है, लेकिन अगर तुम 3 महीने में डेडिकेटली कर लेते हो, कंसिस्टेंसी बना लेते हो, रोज़ 10-10, 12-12 घंटा पढ़ के करते हो, यू कैन क्लियर। बट मेरे साथ क्या हो रहा था, उस 3 month में ही सारे इमोशनल जो सारे हर्डल्स थे, वेदर इमोशनली, एक्सटर्नली और विद इन माई फैमिली ऑल्सो, दैट हैपन। ओके, सो I got ill, then I recovered in 3 days. Then after that, I prepared for accounting for 2 days, and then my exam देने गई. And the moment I stepped out of my house, I was feeling very fresh because I stepped out after so many months. और मुझे ट्रैवल करने में मज़ा आ रहा था. But for exam, I was numb. I was not feeling anything. मेरी प्रिपरेशन ही इतनी ख़राब हुई थी that I was like बस देना है और आ जाना है, इतना. सो मैं पेपर लेके भी बैठी हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ. अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ मैं क्या करके आई हूँ. ऑन एंड ऑल आई कैन से दैट आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 70 or 75 मार्क्स एंड मे बी उससे भी कम. सो फॉर अकाउंटिंग इट इज़ लाइक दैट. So when I came after giving my exam, so my friend who was preparing with me texted me and she was very excited कि मतलब कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा था एक्सपीरियंस, है ना. But I was not excited. I was feeling nothing. I was feeling empty from inside. And मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि मैंने तो उस हिसाब की प्रिपरेशन करी नहीं ना जैसे मैंने सोची थी. So मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. It was just like कि मैं फॉर्मेलिटी करके आ चुकी हूँ.
एंड मैंने नहीं सोचा था कि मेरे एग्ज़ाम ऐसे जाएंगे, 3 मंथ्स कितने बेकार जाएंगे. दिस हैपन. देन आया लॉ का एग्ज़ाम. लॉ का भी मैं इतना ही कुछ अटेम्प्ट करके आई हूँ. एंड लॉ के क्वेश्चंस एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर ना हाउ माई एग्ज़ाम्स में. नहीं, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर कि मतलब जब एग्ज़ाम देके मैं आती थी तो मैं पेपर डिस्कशन भी नहीं देखती थी यूट्यूब पे सर का. व्हाट डू आई रिव्यू, मतलब मैं क्या रिव्यू करूँ. मैंने इतना मेस्ड अप किया है इन एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो दैट आई कैन नॉट इवन रिव्यू इट. और अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ जो मैं करके आई थी. टैग्स भी मैंने जस्ट मतलब पासिंग जितना होता है 50-60 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करें. सो ग्रुप 1 के एग्ज़ाम तो फिर भी मैं ऐसा था कि ओके मे बी ग्रुप 1 के ठीक ठाक गए हैं. बट देन ग्रुप 2 में जब ग्रुप 2 के एग्ज़ाम दिए तब तो पूरा कॉन्फिडेंस ही शैटर हो गया. कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से होता है ना कि इफ़ मैजिक हैपन, और अगर क्लियर हो गया क्या पता, है ना, बिल्कुल एकदम बॉटम लाइन पे आके अगर पास हो गई. पर जब ग्रुप 2 के एग्ज़ाम हुए तब तो और ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग का भी अच्छा नहीं गया, और जो FMSM था वो सबसे बेकार गया है. मतलब SM में आई यूज़ टू स्टडी वेरी डेडिकेटेडली सो दैट अगर FM में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो SM संभाल लेगा. SM के क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी टॉपिक, और FM के तो पता ही होगा, एक तो फाइनल का भी आ गया था क्वेश्चन और मेरा कॉन्फिडेंस भी गिर चुका था. तो मेरी जो ये एग्ज़ाम डेज के बीच की प्रिपरेशन होती है वो भी बहुत डाउन जा चुकी थी. सो आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड टू पास, बट हमें एटलीस्ट 80 मार्क्स तो अटेम्प्ट करना पड़ता है सो दैट तुमने अगर सही भी करा है तुम 60 या 40 स्कोर कर लो. उतना भी आई हैव नॉट अटेम्प्टेड. एंड ऑडिट तो सरप्राइजिंगली ईजी आया था. एंड जो अंकित सर ने मतलब जिनसे मैंने ऑडिट पढ़ी है, जो वो बता रहे थे अपने मैराथॉन्स में, या फिर जो उन्होंने सुबह वाला वार्म अप सेशन लिया था उसमें से भी क्वेश्चंस आ गए थे. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. बट ड्यूरिंग दीज 10 days ऑल्सो इमोशनली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. माई फ्रेंड वॉज लाइक कि एग्जामिशन तो ला इसमें. एंड मैंने भी ऑडिट में बहुत मेहनत करी. During these 10 days also I was not able to focus properly. Okay, so that was the exam review and life update. बहुत ही मैसी बहुत ही कट करके ये वीडियो एडिट होगा and then I will upload. And I don't know if you will be able to understand what I'm saying. But update तो करना ही था because now I will start posting again. And जो मैंने वो पॉज लिया था I think उस वजह से भी मेरा माइंड थोड़ा बहुत ही आइसोलेट हो चुकी थी. मैं कुछ था नहीं मेरे पास other than I was just sitting in my room. और even if I have just मतलब मैं वॉक करती अपने टेरेस पे जाके तो तब भी शायद थोड़ी हीलिंग होती. बट बिकॉज मैंने कम्प्लीटली कट डाउन कर दिया था ये सब एंड तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम अपने स्टडीज़ में थोड़ा 10 मिनट निकाल के मेडिटेट या योगा करो सो दैट तुम्हारा माइंड काम रहे. So now I have shared you the story of these 3 months, what all happened. I don't know if I'm able to, explain you correctly all what happened, but that's how things were messy, uncertain. So after exam, what most aspirants do, they enjoy for a bit and वो अपना ITOC का देखते हैं. ITOC का मैं भी सोच रही हूँ बट जहाँ से मुझे करनी है वहाँ के बैचेस अभी अवेलेबल नहीं है. एंड जैसे ही ऑडिट की डेट आई थी 31st को जब पोस्टपोन हो गया था ऑडिट, तो तब तो पोर्टल पे पूरा ही दिखना बंद हो गया. वो जो बैच अवेलेबल भी था वो भी दिखना बंद हो गया. सो आई डोंट नो ऑडिट का सो आई डोंट नो अब ITOC का बैच कब लॉन्च होगा. एंड मतलब आई वॉज प्लानिंग टू डू ऑन इन ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च. एग्ज़ाम गए हैं उसे देखते हुए आई एम अनसर्टेन अबाउट द रिजल्ट. वेरी अनसर्टेन क्या बहुत प्रेडिक्टेबल है कि रिजल्ट कैसे आने वाला है. सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई 3 months टू प्रिपरेशन नाउ. फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. एंड मई की डेट शीट तो आई चुकी है. सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर मई नाउ. सो यू मे सी सम स्टडी ब्लॉग्स इफ आई विल पोस्ट. सो आई एम हीलिंग एवरी डेज. दैट्स वाई आई गॉट द करेज टू अपडेट टू यू ऑल. So that was it, and
now I will start posting again. On shorts I am active, but on long form also I will come up with some videos. So thank you for supporting me throughout. You have gave a lot of love to my study vlog, so thank you so much for that. And I think this journey, everyone have a different kind of journey. किसी की जर्नी में कम स्टोन्स होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी की जर्नी में सक्सेस काफ़ी जल्दी आ जाती है. एंड समवन हैव टू गो थ्रू अ लॉट टू get to achieve that goal, right? So I think that this phase came to teach me a lot of things, and I learned a lot of things from this, and I also unlearned some things from this. So that is it for this video, and thank you so much for watching, and thank you so much for supporting me.